Now the next slide heading in the same lecture, respiration and circulation is pumping action of heart. Now today we'll see about how the human heart works, what is the pumping action of the heart कैसे पंप करता है, कैसे ब्लड को फोर्स करता है और कैसे ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. Now as we know about heart, it is mainly a pumping organ. Heart is pumping organ responsible for heart. As you know, heart में जो main muscle है, that is called as cardiac muscle. Cardiac muscle is basically responsible for rhythmic contraction and relaxation. Heart is mainly a pumping organ and it is responsible for contraction and relaxation. Remember, this contraction and relaxation is done with the help of cardiac muscles. Now this contraction of the heart is called as systole, while the relaxation of heart is called as diastole. Contraction को systole कहते हैं और relaxation को हम diastole कहते हैं. बच्चों, this contraction and relaxation collectively means contraction and relaxation, systole and diastole, is collectively called as heartbeat. इसे हम heartbeat कहते हैं. तो हमारे हार्ट में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब सिस्टोल और डायस्टोल होता है, जिसको मिलाकर हम एक हार्टबीट कहते हैं. नाउ हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट. हमारा हार्ट एक मिनट में 70 से 72 टाइम हार्ट बीट करता है. दिस इज द नॉर्मल बीटिंग ऑफ द हार्ट. Under certain condition, heartbeat may increase or it may decrease. उसके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी नॉर्मल हार्टबीट के बारे में पढ़ रहे हैं. 72 टाइम्स हार्टबीट करता है एक मिनट में, and this is called as heart rate. This is called as heart rate. This is the normal heartbeat, 72 times per minute. That is called as heart rate. Now what happened? For example, ये हमारा हार्ट है. ये कल मैंने आपको बताया था, ये हमारा हार्ट है. हार्ट के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स हैं. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. बोथ द ऑरिकल्स आर रिसीविंग चैम्बर एंड वेंट्रिकल्स आर फॉरवर्डिंग चैम्बर. वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है. तो बच्चों, जब एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी एक बार जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है, यहां से निकलने वाला ब्लड और यहां से निकलने वाला ब्लड, ये दोनों ब्लड कलेक्टिवली एक हार्टबीट में कितना निकलता है? इट कम्स टू बी 70 ml. 70 ml ऑफ ब्लड कम्स आउट ऑफ द हार्ट पर बीट. रिमेंबर, ये 70 ml दोनों वेंट्रिकल से मिलाकर निकलता है. तो 70 ml ब्लड एक हार्टबीट में बाहर निकलता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम. इसको हम बोलते हैं stroke volume. So stroke volume is 70 ml under normal condition. एक बार जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है या हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर निकलता है सिंगल हार्टबीट में, it comes to be 70 ml and this is called as stroke volume. Now the next point. बच्चों, एक हार्टबीट में 70 ml ब्लड निकलता है. एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करता है? 70 से 72 टाइम्स. लेट अस कंसीडर 72 टाइम. ओके, तो एक मिनट एक बीट में 70 ml निकल रहा है और हार्ट 72 टाइम्स बीट कर रहा है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आता है? 5040 ml. दैट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ ब्लड comes out of the heart per minute. This much amount of blood comes out of the heart per 72 beats. That is per minute. Okay, that is 5040 ml. This is approximately 5 liter. And this reading is called as cardiac output. इसको हम बोलते हैं cardiac output. So how will you define cardiac output? The amount of blood comes out of the heart, comes out of the ventricle per minute is called as cardiac output. ये दोनों में डिफरेंस याद होना चाहिए.
Stroke volume is the amount of blood comes out of the heart per beat, and cardiac output is the amount of blood comes out of the heart per minute. Okay, तो ये cardiac output हो गया. अभी इसके बाद next part is conducting tissue of heart. Now the next part is conducting tissue and conducting system of heart. These are the two separate side heading given in your book, but they are correlated. Conducting tissue, the tissue which is present in our heart and responsible for conducting heartbeat. वो हमारे हार्ट का टिश्यू जो हार्टबीट को कंडक्ट करता है, और उस टिश्यू की वजह से कैसे हार्टबीट कंडक्ट होती है, कैसे वो सिस्टम काम करता है, that is what we'll study in this side heading. Now before starting with the detail, you should know human heart is a myogenic organ. What is myogenic organ? Human heart कैसा है? Human heart myogenic है. Myogenic का मतलब क्या होता है? देखो बेटा, इनवॉलेंट्री एक्शन, हमारी बॉडी में दो तरह के एक्शन होते हैं, एक वॉलेंट्री एक इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे लिम्स का मूवमेंट, हाथ का मूवमेंट, ये वॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से काम करता है, ये वॉलेंट्री एक्शन है. इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन है जो हमारे काबू में नहीं है, हमारे बस में नहीं है, हमारी मर्जी से काम नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंटेस्टाइन, हमारा ईसोफेगस का मूवमेंट, हमारे स्टमक में होने वाला मूवमेंट, ये हम जानबूझ के नहीं करते हैं और इसको हम कंट्रोल भी नहीं करते हैं, मगर ये मूवमेंट होते हैं. दिस ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शन. अभी इनवॉलेंट्री एक्शन दो तरह के हैं, एक है न्यूरोजेनिक और एक है मायोजेनिक. न्यूरोजेनिक मीन्स वो इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी हमारे स्टमक का मूवमेंट न्यूरोजेनिक है. हम कंट्रोल नहीं करते, बट स्टिल अवर ब्रेन इज कंट्रोलिंग, अवर नर्वस सिस्टम इज कंट्रोलिंग. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक एक्शन. मायोजेनिक क्या है? जैसे हार्ट बीट, हमारा हार्ट मायोजेनिक है, यानी हार्ट बीट ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में भी नहीं है, हमारे नर्वस सिस्टम इसको इनिशिएट नहीं करते हैं. इन शॉर्ट, हमारा हार्ट, हमारा दिल जो है, इस पे न तो हमारी मर्जी चलती है, वॉलेंट्री नहीं है, और न ही हमारे ब्रेन का कंट्रोल इसके ऊपर है. हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द मसल्स, बाय द टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट इटसेल्फ. यानी हार्ट सिर्फ अपनी ही सुनता है, अपने से ही काम करता है. सच एक्शंस आर कॉल्ड एज मायोजेनिक एक्शन. नाउ अभी हमारे हार्ट में, एज फार एज हमारे हार्ट में कुछ स्पेशलाइज्ड, जैसे हार्ट का डायग्राम, एग्जैक्ट डायग्राम आपने कल लास्ट टाइम पढ़ा था. हाँ, ये एक रफ डायग्राम जस्ट टू एक्सप्लेन यू. ये हमारा हार्ट है. हार्ट के अंदर एक अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं. ये हार्ट के अंदर के 4 कंपार्टमेंट्स हैं. ये अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एज एट्रिया एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल. ये 2 एट्रिया है, ये 2 वेंट्रिकल है. जस्ट रफ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू. ओके, अभी क्या होता है हमारे हार्ट में, जो हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट के जो फाइबर्स हैं, वो कुछ स्पेशलाइज्ड या कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं और उनसे नोड्स बनती हैं, जिसे नोडल टिश्यू हम कहते हैं. हमारे हार्ट में कार्डियक मसल और कुछ फाइबर से कुछ स्पेशलाइज्ड नोड्स बनती है. नोड्स मतलब गांठ बनती है, जिसे हम नोडल टिश्यू कहते हैं. Now, nodal tissue. नोडल टिश्यू, हमारे हार्ट में जो नोडल टिश्यू है, ये नोडल टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं. 4 टाइप के नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में प्रेजेंट हैं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज SA नोड. इसका पूरा नाम है साइनोएट्रियल नोड. साइनोएट्रियल नोड कहां पर प्रेजेंट होती है? हमारा जो राइट एट्रियम है बच्चों, दिस चैम्बर, एज यू नो, दिस चैम्बर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम. ये राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पे यहां पर एक नोड है, यहां पर एक छोटी सी गांठ है, इसे हम कहते हैं SA नोड. राइट, दिस वन इज कॉल्ड एज SA नोड. ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, जस्ट एट द बेस ऑफ सुपीरियर वेना कावा. जहां सुपीरियर वेना कावा ओपन होती है, उसके पास बेस में ये नोड प्रेजेंट होती है. इसको हम SA नोड कहते हैं. दिस SA नोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. Important in the sense, this SA node itself is responsible for generating the impulse
यही इंपल्स बनाती है, ये इंपल्स की शुरुआत करती है, सिग्नल या स्टिमुलेशन बनाना इसका खुद का काम है, ये खुद से इंपल्स बनाती, जनरेट करती है। दैट इज वाई ऐसे नोड में ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इसे कहते हैं पेस मेकर। ऐसे नोड इज कॉल्ड एज पेस मेकर एज इट जनरेट्स द पेस, एज इट जनरेट द इंपल्स, इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर। एक और नोड है, दूसरी नोड कहां पर है, राइट एट्रियम में ही, राइट एट्रियम में ही लोअर साइड पे थोड़ा लेफ्ट की तरफ, यानी यहां पर ऑलमोस्ट यहां पर एक और नोड है जहां पे इंटर एट्रियल सेप्टम नीचे मर्ज होता है, उसके पास ये दूसरी नोड प्रेजेंट होती है। एंड दिस सेकेंड नोड इज कॉल्ड एज एवी नोड, दिस इज कॉल्ड एज एवी नोड। इसका पूरा नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे, यानी एट्रिया राइट एट्रिया के लोअर साइड पे प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड एज एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। नाउ दिस एवी नोड इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज, इसी का दूसरा नाम है पेस सेटर, इसको पेस सेटर कहते हैं। पेस यानी इंपल्स को जनरेट करना इसका काम है, लेकिन इंपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, ये इसका काम है, पेस सेटर का काम है। नाउ अभी जो पेस सेटर है यानी एवी नोड है, एवी नोड से ना यहां से एक फाइबर, एक मॉडिफाइड कार्डियक मसल का फाइबर यूं बाहर आता है, ये फाइबर बाहर आता है। जब ये फाइबर निकलता है तो पहले सिंगल होता है, ये फाइबर, ये नोड है, ये फाइबर सिंगल है, और आगे जाने के बाद ये फाइबर दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। वन पार्ट इज गोइंग टू द वॉल ऑफ ईच वेंट्रिकल, you can see in the diagram, one part is, initially it was a single fiber, but as it runs forward, ये कहां से रन करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से, दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो पार्टीशन है, दिस पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से रन करता है, ये इनिशियली स्ट्रेट होता है, पहले सिंगल है, आगे जाके बाइफरकेट होता है दो पार्ट में, उसके बाद टर्न होके वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट है। रिमेंबर, वेंट्रिकल के अंदर के स्पेस में, अंदर के कंपार्टमेंट में नहीं है, वेंट्रिकल की वॉल में प्रेजेंट है। एंड दिस फाइबर विच इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ये वाले फाइबर को हम बोलते हैं, इसका नाम है बंडल ऑफ हिस। दिस फाइबर इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। इट मे समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज बंडल ऑफ टवारा। इसको बंडल ऑफ हिस या बंडल ऑफ टवारा के नाम से जानते हैं। ये बंडल ऑफ हिस है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से होता हुआ वेंट्रिकल की वॉल में चला जाता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अभी बंडल ऑफ हिस से ना ऐसे बहुत सारे फाइन फाइबर्स निकलते हैं, एंड दिस फाइबर्स आर रनिंग इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल की वॉल में जाते हैं, वेंट्रिकल की वॉल में, दे आर गोइंग टू ईच एंड एवरी साइड in the wall of ventricle, right? This type of fibers are present, and these fibers जो bundle of his से निकलने वाले fine fibers है, going to the wall of ventricle की जो thick wall होती है उसके अंदर जाते हैं, and these fibers are called as Purkinje fibers. They are called as Purkinje fibers. तो बच्चों ये चार मेन टिश्यू हैं, ये चार मेन नोडल टिश्यू हैं जो हार्ट बीट को कंडक्ट करते हैं। These tissues are collectively called as conducting tissue of heart. Once again I am reminding, ऐसे नोड राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ये एवी नोड है, दिस वन इज एवी नोड, ये एवी नोड है। एवी नोड राइट एट्रियम के बेजल साइड पे थोड़ा लेफ्ट की तरफ, ऑलमोस्ट जहां पर इंटर एट्रियल सेप्टम खत्म होता है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इससे अराइज होने वाला एक थिक बंडल जो आगे जाके बाइफिड होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से रन करता है और आगे वेंट्रिकल की वॉल में टर्न होके आ जाता है। दिस बंडल इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस। ये है बंडल ऑफ हिस, और ये जो फाइन फाइबर्स हैं वेंट्रिकल की वॉल में है, दीज आर कॉल्ड एज Purkinje fibers. So these are the conducting tissue of heart.
अभी कंडक्टिंग सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको कुछ थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेन करता हूं. लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू. देखो, ऐसे नोड, एज सेड अर्लियर, ऐसे नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग इंपल्स. ये इंपल्स बनाता है. यहां से जो इंपल्स जनरेट होती है ना, ये इंपल्स यहां से निकलती है, इंपल्स यहां से निकलती है, और ये कहां पर जाती है? इट गोज, इट स्प्रेड इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम. ये इंपल्स स्प्रेड हो रही है, राइट? ये इंपल्स स्प्रेड हो रही है यहां तक कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी इंपल्स जाता है. तो जो सिग्नल ये जनरेट करता है ऐसे नोड, ये सिग्नल राइट एट्रियम की वॉल से लेफ्ट एट्रियम की वॉल तक जाता है. एंड दिस सिग्नल इवन टचेस द एवी नोड. ये सिग्नल ने ही, इस सिग्नल ने एवी नोड को टच किया. यानी एवी नोड को ऐसे नोड से इंपल्स मिलता है. एवी नोड अपना इंपल्स खुद जनरेट नहीं कर सकते. एवी नोड इज गेटिंग सिग्नल फ्रॉम ऐसे नोड. जब एवी नोड को सिग्नल मिलता है तो ये सिग्नल एवी नोड से होता हुआ बंडल ऑफ हिस में जाता है. बंडल ऑफ हिस के दोनों फाइबर्स में जाता है. उसके बाद वेंट्रिकल की वॉल में पहुंचता है बंडल ऑफ हिस से, और वही सिग्नल बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर में डिस्ट्रीब्यूट होता है. और उसके बाद जब परकिंजे फाइबर्स में सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके बाद जाके हार्ट बीट पॉसिबल, मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है. अभी कैसे वर्किंग होती है, कैसे का, जब ये इंपल्स पहुंचता है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा. कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे वर्किंग होती है, दैट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट. So the next part given in your book is working mechanism of human heart. हमारा हार्ट कैसे काम करता है, what is the working strategy, what is the working mechanism of human heart. In this working mechanism, the first thing we'll study about the cardiac cycle or the heartbeat. बच्चों, कार्डियक साइकिल, हार्टबीट एक ही चीज है. हमारे हार्ट के जो अपर चैम्बर है एट्रिया, the upper chamber of the heart is called as atria. You know the upper chamber, this chamber is called as atria, and the lower chamber is called as ventricle, right? ये अपर चैम्बर एट्रिया है, लोअर चैम्बर वेंट्रिकल है ना. हार्ट 4 कंपार्टमेंट्स में है. तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, अपर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन और लोअर चैम्बर का कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन एक साथ नहीं होते हैं. ये ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होता है. पहले एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फॉलोड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल. ये बारी बारी से होते हैं. ये एक रिदमिक वे में चलते रहते हैं. दोनों चैम्बर का बारी बारी कॉन्ट्रैक्शन होना और उसका रिलैक्सेशन होना, दिस एंटायर थिंग इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल और हार्टबीट. हमारी एक हार्टबीट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकेंड. 0.8 सेकेंड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सिंगल हार्टबीट. दूसरी बात मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारा हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स, इट बीट 72 टाइम्स पर मिनट. एक मिनट में 72 टाइम बीट करता है. रिमेंबर, दिस रीडिंग इज एप्लीकेबल फॉर एडल्ट एट रेस्ट. एक एडल्ट के लिए, और उसकी बॉडी एट रेस्ट अगर वर्किंग है यानी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो ऐसे में हार्ट बीट विल बी फास्ट, हार्ट बीट विल इंक्रीज. और अगर वो नॉर्मल कंडीशन में एट रेस्ट पोजीशन पे है तो ऐसे कंडीशन में उसका हार्ट 72 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है. नाउ, अब इसमें पहला पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द एट्रियल सिस्टोल. व्हाट इज एट्रियल सिस्टोल? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हमारा जो अपर चैम्बर है एट्रिया, ये एट्रिया पहले रिलैक्स रहता है. जब ये रिलैक्स रहता है तो इसमें रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल से ब्लड एंटर होता है. एज यू नो, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा राइट एट्रियम है. बच्चों, यू नो वेरी वेल, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन. 4 पल्मोनरी वेन से इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और इसमें सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से और कोरोनरी साइनस से, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, ये तीनों ओपनिंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. यहां पे आने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे आने वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दोनों एट्रिया में जब ब्लड आता है, ये एट्रिया फिल होता है. एट्रिया की वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है. एट्रिया की वॉल पे प्रेशर जनरेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर एट्रिया की वॉल में आपने अभी पढ़ा था, यहां पर एक नोड होता है जो कॉल्ड एज एसए नोड.
आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा, यहां पर SA नोड है, ऐसे नोड को इंपल्स मिलता है। जब एट्रिया की वॉल पे प्रेशर आता है तो ऐसे नोड को इंपल्स मिलता है। जब ऐसे नोड को इंपल्स मिलेगा, मतलब सिग्नल मिलेगा, तो ऐसे नोड कार्डियक इंपल्स जनरेट करेगा। और जब ये कार्डियक इंपल्स जनरेट करेगा तो इस जनरेशन की वजह से ये इंपल्स, आपने पढ़ा, यहां से स्प्रेड होता है, यहां से स्प्रेड होता है। ये इंपल्स दोनों एट्रिया की वॉल में पहुंच जाता है। जब ये इंपल्स दोनों एट्रिया की वॉल में पहुंचेगा, दोनों एट्रिया की वॉल पूरी तरह से पोटेंशियलाइज्ड हो जाएगी, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, जिसके वजह से एट्रिया की, दोनों एट्रिया की वॉल का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। बच्चों, दोनों एट्रिया की वॉल का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होना, इस कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। यहां पर एट्रियल सिस्टोल कितने समय के लिए होता है? जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, ये वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, इसका कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लेफ्ट एट्रिया का ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और राइट एट्रिया का ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल, मतलब राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड इज प्रिवेंटेड। जब आपको याद है, हमने हार्ट के वाल्व्स के बारे में पढ़ा था। यहां पर 3 ओपनिंग थी, जिसमें से 2 ओपनिंग पे वाल्व्स थे। इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग पे यूस्थेशियन वाल्व था, और कोरोनरी साइनस की ओपनिंग पे थेबेशियन वाल्व था। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दिस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वाल्व्स जो हैं वो ब्लड को बैकफ्लो नहीं होने देते हैं, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ब्लड इसमें ही आएगा। 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड नीचे आया, अब एट्रिया का रिलैक्सेशन होने लगेगा। एट्रिया का रिलैक्सेशन, सिस्टोल इज फॉर ओनली फॉर 0.1 सेकेंड, राइट? अब एट्रिया का डायस्टोल होगा, अब ये खुलने लगेगा ना, उल्टा ढीला पड़ेगा, ये उल्टा जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डायस्टोल। और डायस्टोल कितने टाइम के लिए होता है? 0.7 सेकेंड के लिए। एट्रिया का डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए होगा। मीनवाइल अब यहां का ब्लड नीचे आ चुका है, यहां का ब्लड नीचे आ चुका है। ये इंपल्स जो ऐसे नोड से जनरेट हुआ था, ये इंपल्स कहां पर आ गया? एवी नोड पर आ गया। बच्चों, ये इंपल्स एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में गया, आपने प्रीवियस डायग्राम में पढ़ा। ये इंपल्स बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स में गया, आपने प्रीवियस डायग्राम में देखा। अब दोनों वेंट्रिकल की वॉल पूरी तरह से पोटेंशियलाइज्ड हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई, और दोनों वेंट्रिकल की वॉल का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ये दोनों वेंट्रिकल की वॉल का एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा, दिस फेनोमिनन इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, विच लास्ट फॉर ओनली 0.3 सेकेंड। सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए ही होता है। तो बच्चों, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड के लिए, ये रिलैक्स होने लगा। उसके बाद ये 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसमें से ब्लड कहां जाएगा? रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल। एज यू नो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकलती है, यहां से याद है यू टर्न होके निकली थी, दैट इज कॉल्ड एज आयोटा, विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी। और यहां से जो ब्लड वेसल यूं निकल के ऊपर स्प्लिट हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरी, विच सप्लाइज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो यहां से ब्लड रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल में चला जाता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से यहां का ब्लड बॉडी में जाएगा और यहां का ब्लड लंग्स में जाएगा। ऑल्सो यहां पे जो 2 वाल्व्स थे ना, 2 अपर्चर थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर, राइट साइड पे ट्राइकस्पिड वाल्व था, लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वाल्व था। और ये दोनों वाल्व वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज होते हैं? अगेन टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड उल्टा नहीं चला जावे, वापिस से एट्रिया में नहीं चला जाए, इसके लिए ये दोनों वाल्व का बंद होना कंपलसरी है। बच्चों, जब ये दोनों वाल्व एक साथ बंद होते हैं, ये दोनों वाल्व ना, कस्पिड वाल्व, ये एक साथ बंद होते हैं, तो हमारे हार्ट से पहला साउंड आता है, दिल से पहली आवाज आती है, जिसको हम लब साउंड कहते हैं। हार्ट में 2 साउंड होता है, पहला साउंड लब साउंड। वो क्यों आता है? क्योंकि दोनों कस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व एक साथ बंद होते हैं। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट।
तो बच्चों वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए। अब उसके बाद जब ये ब्लड रिस्पेक्टिव वेसल में चला गया तो वेंट्रिकल ढीले पड़ने लगेंगे, यानी वेंट्रिकल का डायस्टोल होने लगेगा। अब इसका डायस्टोल होगा, जब इसका डायस्टोल होगा वो फिनोमिनन, वो प्रोसेस कितनी देर चलेगा? 0.5 सेकेंड तक चलेगा। 0.3 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, 0.5 सेकेंड तक डायस्टोल चलेगा। अब इसके डायस्टोल के टाइम जब वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा, देखो आपको मालूम है यहां से जो ब्लड वेसल निकली थी ना पल्मोनरी ट्रंक, यहां से जो ब्लड वेसल निकला था अयोर्टा, इन दोनों के ओपनिंग्स पे सेमी ल्यूनार वाल्व मैंने कल बताया था, सेमी ल्यूनार वाल्व, वो सेमी ल्यूनार वाल्व इसके डायस्टोल के टाइम पे बंद हो जाते हैं। क्यों बंद होते हैं? ताकि वापस से ब्लड का बैकफ्लो नहीं हो जाए, क्योंकि जब ये खुलने लगेंगे, अभी अभी ब्लड इसमें गया था ना, जब ये खुलेंगे तो ब्लड वापस नहीं आ जाए, इसके रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड वापस से हार्ट में ना आ जाए, इसके लिए सेमी ल्यूनार वाल्व का बंद होना कंपलसरी है। सेमी ल्यूनार वाल्व के बंद होने से हार्ट से सेकंड साउंड आता है, हार्ट से जो सेकंड साउंड आएगा, द सेकंड साउंड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज डब साउंड। पहला साउंड जो आया था वो लब साउंड था और सेकंड साउंड डब साउंड होगा। तो लब के बाद डब साउंड, इसको डब, DUB डब, किसी बुक में DUP डप भी होगा, ओके इट्स ओके। तो लब एंड डब साउंड, ये दो साउंड एक नॉर्मल हार्ट बीट में जनरेट होते हैं, नॉर्मल हार्ट बीट में जनरेट होते हैं लब एंड डब साउंड। बच्चों अब क्या, एक चीज और क्लियर करो वापिस से, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.1 सेकेंड ब्लड नीचे गया, इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ 0.3 सेकेंड ब्लड रिस्पेक्टिव ब्लड वेसल में गया। अब 0.4 सेकेंड का टाइम ऐसा होता है जो दोनों के रिलैक्सेशन में, दोनों के डायस्टोल में ओवरलैप हो जाता है। इसका डायस्टोल 0.7 सेकेंड का है, इसका डायस्टोल 0.5 सेकेंड का है, लेकिन 0.4 सेकेंड का टाइम ऐसा होता है जो दोनों के डायस्टोल में ओवरलैप होता है। वापस से 0.1 सेकेंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये अभी रिलैक्स हो ही रहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उसके बाद ये रिलैक्स होगा 0.5 सेकेंड के लिए, तो इसका 0.4 सेकेंड और इसका 0.4 सेकेंड ओवरलैप होता है। इस ओवरलैपिंग को हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल जो 0.4 सेकेंड के लिए होता है, 0.4 सेकेंड के लिए होता है। तो बेटा 0.4 सेकेंड के लिए जॉइंट डायस्टोल होगा। एक्चुअल में याद रखना है, ये जो 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल है, 0.7 सेकेंड एट्रिया का डायस्टोल है, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, 0.5 सेकेंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। इसको ऐड करेंगे 0.8 होगा, इसको ऐड करेंगे 0.8 होगा। टोटल टाइम लगता है 0.8 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.6 हो जाएगा। लेकिन हार्टबीट को कंप्लीट होने में 1.6 सेकेंड नहीं लगता है, हार्टबीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड ही लगता है, बिकॉज दिस इवेंट्स आर ओवरलैपिंग, दिस इवेंट्स आर ओवरलैपिंग। जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिलैक्स था, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये रिलैक्स हो रहा था। तो ये इवेंट्स ओवरलैपिंग होते हैं, जिसमें से रिलैक्सेशन का जो इवेंट है वो 0.4 सेकेंड के लिए दोनों का साथ में होता है, इसको जॉइंट डायस्टोल हम कहते हैं। आखिरी बात बच्चों, हार्ट से आने वाली जो नॉर्मल साउंड है लब डब साउंड, ये नॉर्मल साउंड है। नॉर्मल साउंड जो स्टेथोस्कोप की मदद से या दिल के करीब कान रख के भी सुना जा सकता है, हार्ट से आने वाला लब डब साउंड। कभी कभी कुछ लोगों के हार्ट में फॉल्ट होता है और उस फॉल्ट में एबनॉर्मल साउंड सुनाई देते हैं। दो एबनॉर्मल साउंड काफी कॉमन है, एक मरमरिंग साउंड और एक हिसिंग साउंड। एक मरमरिंग साउंड, एक हिसिंग साउंड। ये साउंड हमारे हार्ट के वाल्व्स में अगर फॉल्ट है, वाल्व में अगर लीकेज होगा तो हिसिंग साउंड क्रिएट होता है। वाल्व अगर लूज हो गए होंगे, उनका अटैचमेंट लूज हो जाता है तो मरमरिंग साउंड क्रिएट होता है। तो ये वाल्व्स के डिफेक्ट को एबनॉर्मल साउंड बताते हैं। हार्ट से लब डब साउंड का आना ये नॉर्मल है। सो दिस ऑल अबाउट द नॉर्मल वर्किंग मैकेनिज्म। आपकी टेक्स्ट बुक में इसके बाद वापस से
स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट दिया है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कार्डियक आउटपुट जो एक हार्ट बीट में ब्लड निकलता है जो 70 ml है, और कार्डियक आउटपुट जो 1 मिनट में ब्लड निकलता है जो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर है। ओके